श्री प्रभुपाद का आगमन हुआ था भुवनेश्वर की धरती पे। सो इसमें तो बहुत सारे अलग अलग लीलाएं भी है। सो हमने ये पढ़ा था कि प्रभुपाद मड हट। सो प्रभुपाद खास वहीं पे रहे थे जहाँ पे उनके प्रिय शिष्य श्री श्रीमद शिला गौरकुंड स्वामी महाराज रहे थे। सो एंड इसमें अलग अलग रियलाइजेशंस भी थे। श्री जयपताका स्वामी महाराज बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था वहाँ पे, कितने हम्बली, कितने एक प्रकार से लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट कंडीशन हम कह सकते हैं, मतलब एकदम सिंपल। इसमें कोई ऐसा कह सकते हैं ऑपुलेंस नहीं है, या कोई ऐसा सोफा भी नहीं है, सोफा भी छोड़ दीजिए। सो आप समझ सकते हैं कितना सिंपल वो जगह होगी। सो उसका परिचय था उसमें। तो हम उसका हम आगे बढ़ते हैं। द लिविंग चैतन्य। सचिनंदन दास प्रभु जी बता रहे हैं, आई हैड एन elderly friend 65 years old who was a senior journalist with Times of India. He was visiting Odisha, and as an official guest of the state government, he was given a car and an officer to accompany him places. He requested me to take him to meet Sri Prabhupada. I brought him to the mud hut where Sri Prabhupada was staying. A few of Sri Prabhupada's disciples were there, and we joined. Sri Prabhupada was explaining some of the great difficulties he initially encountered in the USA trying to spread Sriman Mahaprabhu's mission. He said the people there believe in sense gratification of all types, and if one is able to enjoy more sophisticated types of sense gratification, that is considered to be a sign of success. So, Sri Prabhupada said, I was wondering how I could convince them of Krishna consciousness. Srila Prabhupada asked one of his disciples to bring a copy of Sri Chaitanya Charitamrita. I was wondering to myself what relationship Chaitanya Charitamrita. So ये प्रभुपाद का एक फोटो है जब प्रभुपाद वाज गिविंग अ लेक्चर। सो इस पे एक बहुत सुंदर लीला भी है। ये हम हाँ ये हम जब ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं लीला का वर्णन करूंगा। तो ये पहले खत्म करता। सो यहाँ पे आई वॉज वंडरिंग टू माई सेल्फ वॉट रिलेशनशिप चैतन्य चरितामृत had with the conditions in the USA from a Krishna consciousness point of view. The devotee brought the Chaitanya Charitamrita and read a verse and purport. I noted that this journalist was sitting there with an astonished look on his face. He started to raise his hand to ask Srila Prabhupada a question. Prabhupada said, Shrutidhar, go and bring Bhagavad Gita. He told me to read a particular verse with the purport. He did so. I did so, and afterwards, my journalist friend indicated to me that he wanted to go. We offered our respects to Sri Prabhupada and went out. When we reached the car, the journalist suddenly embraced me so strongly, I thought that my ribs were going to be broken. I asked him what happened. He said, Shrutidhar, thanks to you, I was able to meet the living Chaitanya. So ये एक पैराग्राफ हुआ, आगे हम रीड करेंगे। इसमें एक जर्नलिस्ट है। जब प्रभुपाद का आगमन हुआ था भुवनेश्वर में, एक जर्नलिस्ट जो थे टाइम्स ऑफ इंडिया के बिलोंगिंग, वहाँ जॉब करते थे। तो वहाँ से वो आए थे श्री प्रभुपाद का इंटरव्यू लेने। सो उनको एक एक प्रश्न था, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जिसका आंसर उन्होंने बताया कि मैंने हर जगह ढूंढा, आगे आएगा वो। मैंने हर जगह ढूंढा है, किंतु मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया, अभी तक नहीं कर पाया। So he wanted to test Srila Prabhupada that whether he is able to answer my question or not. So बहुत बहुत सुंदर लीला है ये कि श्री प्रभुपाद could read his mind. एक्चुअली उनका जो प्रश्न था वो पूछे बिना ही Prabhupada got the book and he read the verse, and that was the same answer which that journalist wanted. So so we can see that a Vaishnava or a pure Vaishnava, he can read each and everybody's mind. So
ऐसा ऐसा कहा जाता है कि आप वैष्णव के सामने, मतलब जो ऑथेंटिक वैष्णव है, हाँ, ऐसा नहीं कि हर कोई वैष्णव है। अभी तो ऐसा हो गया है कि हर कोई सामने से पता है कि हाँ वैष्णव है, ऐसा नहीं होता है। ऑथेंटिक वैष्णव जो हम कह सकते हैं, जो बोनाफाइड वैष्णव जो है, यदि हम उनके पास जाते हैं तो हमें एक प्रकार से कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई डुप्लीकेटनेस दिखानी चाहिए। एक बार के लिए वो भले बताएंगे नहीं कि मुझे पता है, मतलब अभी फॉर एग्जांपल यदि मैं ऐसे बोलूँ कि मैं 16 राउंड्स कर रहा हूँ कोई ऑथेंटिक मैं गुरु वैष्णव के सामने, और मुझे मुझे खुद को पता है मैं 8 राउंड ही कर रहा हूँ, सो ही कैन अंडरस्टैंड कि यस ही इजंट चैंटिंग 16 राउंड्स, and he knows that he is chanting 8 rounds, but he is duplicitous and he is thinking that I am a fool, मतलब वैष्णव जो है वो फूल, मतलब वो उनको मूर्ख बना सकता हो। बट ऐसा नहीं है, वो तुरंत पहचान जाते हैं। या तो फिर वो वही के वही आपको एक्सपोज करेंगे, या तो फिर आपको उसको कर्मफल भुगतना पड़ेगा। सो मैं कभी भी वैष्णव के सामने तो नहीं कहना, ऑब्वियसली ये तो वैष्णव मतलब नित्य पार्षद है श्री कृष्ण के। सो इनके सामने तो किसी प्रकार से भी मतलब हमें कुछ छल या कपट करना ये बहुत डेंजर है, मतलब ऐसा है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, ऐसा है। तो इस पे इसके ऊपर एक लीला है, ये पूरा खत्म हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगा। ये फोटो के रिलेटेड, मतलब ये एग्जैक्ट ये जो फोटो जो है श्री प्रभुपाद का, इसके रिलेटेड लीला मैं बताता हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन, आई रिप्लाइड। ही सेड, when I was 25 years of age and a postdoctoral student, a serious question came to my mind. अब वो क्वेश्चन का वर्णन करें जो मैं बता रहा था पहले। I traveled extensively trying to find someone who could answer my question. I met the Pope. The Pope मतलब जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड है, जो इटाली रोम में मोस्टली होते हैं, and several bishops in the Vatican Italy भाई वो, as well as 3 different chief mullahs in Mecca. I met Satya Sai Baba, Chinmayanand Saraswati, Swami Shivanand, as well as philosophers like Bertrand Russell and others. They all gave me answers, but none of their replies satisfied me. I had heard of Srila Prabhupada's success in preaching in the West, and I had thought, if I ever manage to meet him, I will ask him this question. When we were sitting with Srila Prabhupada, I was patiently waiting for an opportunity to ask my question. When he ordered his disciple to read from Chaitanya Charitamrita, I was astonished to hear the perfect answer to my question. But then doubt arose in my mind. At that time, he asked you to read a particular verse and purport from the Gita. Again, it was the perfect answer to my doubt. He really knew my heart. For the last 40 years, I was waiting for an answer to my question. Your Prabhupada is the living form of Chaitanya. Very well. So, living Chaitanya, Srila Prabhupada जी महाराज की जय। तो जब श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज भी जब भी प्रभुपाद का नाम लेते हैं ना, ही जस्ट सेज माय गुरु महाराज, और ही सेज माय रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर। सो ये माय स्पिरिचुअल मास्टर बोल सकते हैं, बट माय रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर। सो इट एनहांसेस श्री प्रभुपाद पोजिशन। श्री प्रभुपाद इज नॉट जस्ट एन स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर, इज द टॉप मोस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जो भी हमारे गुरुदेव होते हैं, he should be on the first position, and then everybody comes like शिक्षा गुरु है या मेंटर है या पद प्रदर्शक गुरु है, जो भी है वो उसके बाद आता है, बट फर्स्ट टॉप मोस्ट शुड बी गुरु। तो ये फोटो के बारे में मैं लीला बता, हाँ मैंने वो बता दिया कि जो प्रभु जी जो थे जर्नलिस्ट, उनको जवाब मिल गया कि प्रभुपाद ने उनका हृदय ही पढ़ लिया। तो ऐसा ही कुछ कब हुआ था, आप मुझे बता सकते हैं कि when Srila Gaur Govind Swami Maharaj was finding for a guru, then how Srila Prabhupada read Srila Gaur Govind Swami Maharaj's mind? Can you state in chats or unmute? Hare Krishna. Yes. Very well. I will give you sannyas. Yes. Have you accepted sannyas? Yes. Exactly. Yes. So श्री प्रभुपाद ने तुरंत श्रील गौर गोविंद साहब महाराज को पूछा था कि हैव यू एक्सेप्टेड संन्यास। सो श्रील गौर गोविंद साहब महाराज सेड नो प्रभुपाद जी। सो श्रील प्रभुपाद सेड आई विल गिव यू संन्यास। सो इट वाज जस्ट अ फर्स्ट मीट, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत पहले कभी मिले हो
या ऐसा कुछ हो, ऐसा भी नहीं, इट वॉज जस्ट अ फर्स्ट मीट एंड शिला प्रभुपाद रिकग्नाइज दैट ही इज नित्य पार्षद। सो अब मैं ये लीला बताऊंगा। श्री प्रभुपाद, ये जो फोटो है इसमें आप देखेंगे, ये थोड़ा मतलब ऐसा एकदम एकदम कह सकते हैं ये फोटो जब प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, जय राधा माधव जो प्रभुपाद करते हैं स्टार्टिंग में, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो वो जब कीर्तन करे, जब महाराज प्रभुपाद जी महाराज जब भुवनेश्वर में थे, उसी की लीला है ये। मे भी आप लोगों ने सुनी भी हो, आई डोंट नो। तो ऐसा है कि श्री प्रभुपाद वॉज डूइंग द कीर्तन ऑफ जय राधा माधव बिफोर कथा, एंड टीयर्स वर स्ट्रीमिंग फ्रॉम हिज आईज। सो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज मतलब तब तो वो जो कुटिया में जब वो करते थे सेवा, तो उनके साथ जो भी मतलब एक दो भक्तगण थे, मुझे नाम याद नहीं है उनका। सो ही आस्ट श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज दैट आफ्टर कथा, ऐसा आफ्टर कथा हुआ था कि why was Prabhupada crying? Was it out of pain? Because मतलब प्रभुपाद मटीरियली ओल्ड एज थे, तो उनका ऐसा लगा कि क्या उनको पीड़ा हो रही थी कथा की वजह से, मतलब बोलने की वजह से, कथा नहीं बोलने की वजह से, और वो रो रहे थे पीड़ा की वजह से, और वो सहन कर रहे थे, ऐसा था कि क्या था। सो सो श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज स्टार्टेड लाफिंग। सो ही सेड कि आप मतलब वो जो भक्त जो जिन्होंने पूछा, वो एक्चुअली घाव के थे। मतलब गांव वाले जनरली सरल होता है, सिंपल। सो उन्होंने ये सब मतलब इतना फ्रिक्वेंटली देखा नहीं होता है। अभी जैसे हम हैं, हमने कैसा ये सब सुना है, हमें पता है। अभी यदि ये सब आप गांव में किसी को पूछोगे या बताओगे, सो वो इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उन्होंने कभी ऐसे सुना ही नहीं है, कभी ऐसे देखा ही नहीं है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम। सो Srila Gaur Govind Swami Maharaj started laughing, and he said that the devotee that you can't, मतलब आप ये समझ नहीं सकते, you can't understand this। प्रभुपाद भाव उन्माद थे। when he sings Jai Radha Madhav, he sees Srimati Radha and he sees Shri Krishna। तो हम ये समझ नहीं सकते हैं। पर प्रभुपाद, अरे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज सेड दैट ही वाज इन सेपरेशन, ही वाज क्राइंग। ऐसा ऐसा नहीं कि उनको पीड़ा हो रही थी, ऐसा कुछ। बट ही वाज वेरी मच हैप्पी, ही वाज सेइंग श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण। सो ही सेड कि आप गाँव वाले, आप ये समझ नहीं पाएंगे इतना इजीली। So when you will realize, you will know that yes, it is possible. It really exists ऐसा। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, जो शुद्ध भक्त होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं दूसरे किसी महाराज की निंदा कर रहा, ऐसा कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है। ऑब्वियसली दूसरे दूसरे सब महाराज भी हो सकते हैं, बिकॉज कई कई महाराज का ऐसा होता है कि वो दिखाते नहीं है, और ऑब्वियसली दूसरे किसी महाराज की भी इच्छा नहीं होती कि वो दिखाए, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कृष्णा वांट्स कि दूसरे सब भक्त देखे, सो इट डिपेंड्स, ऐसा है। तो श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का भी ऐसा ही है। श्री राजेंद्र दास बाबा जी महाराज जो है, मतलब जो आपने देखा होगा वृंदावन में जनरली होते हैं, तो वो बताते हैं कि यदि किसी को भागवतम सुनना है, या कृष्ण लीला एकदम डिटेल में जाननी, एकदम डिटेल मतलब एकदम डिटेल, कि ये गली से आप राइट में जाएंगे तो यहाँ पे नंदगांव आता है, यहाँ पे क्या बरसाना आते हैं, सब एकदम डिटेल में। तो राजेंद्र दास बाबू जी महाराज कहते हैं कि आप श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से भागवत कथा सुनिए। सो महाराज जब भी भागवत गीता बोलते हैं, ऐसा आप मतलब आप कभी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आई एम लिटरली इन दैट लीला, ऐसा आपको मतलब प्रतीत होगा। ऑब्वियसली हम तो अभी नित्य पद है, हम तो इतना एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट यू विल एक्सपीरियंस दैट यस, आई एम इन द लीला, ऐसा। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई रीड करना चाहेगा, ऐसा कुछ होता प्लीज बताइए, रेज हैंड करिए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? अमन प्रभु, श्रेया माता जी, आगम प्रभु, श्रेया माता जी, प्रोमिता माता जी, कोई भी रीड करना चाहे तो। जी प्रभु जी, मैं रीड कर। यस यस माता जी, प्लीज प्लीज करिए करिए, कंटिन्यू। विजिट टू पुरी, तेजी दास।
Srila Prabhupada instructed me to have a dialogue with Mr. Janki Vallabh Patnaik. At that time, he was the tourism minister and a very important associate of Miss Indira Gandhi. I made him a life member and he became enthusiastic to meet Srila Prabhupada often. Mr. Patnaik was trying to help us find land in Puri. I was coordinating finding the land. With this service in mind, when Srila Prabhupada came to Bhubaneswar in February of 1977, I went there to meet him. Gaur Govind Maharaj at once remembered me and was so happy to see me. I enjoyed hearing his laugh again. Srila Prabhupada went to Puri to look at some land he was considering purchasing for a center. But shortly after, his interest in building a temple in Puri seemed to slacken. He said that since they would not allow his Western disciples inside the Jagannath temple, he would not go inside either. He said that we would build a nice temple in Bhubaneswar instead of Puri. After a few days in Puri, Srila Prabhupada returned to Bhubaneswar. Just before stepping into his hut on Bhubaneswar ISKCON property, Srila Prabhupada stopped, planted his cane 3 times in the ground, and said, I place all my mercy here. I place all my mercy here. I place all my mercy here. Gaur Govind Swami. My Guru Maharaj opened this temple and laid the corner store on the auspicious day of Nityanand's appearance. He stayed here for 16 days. Waiting for that day, he didn't leave earlier. He left the next day, after Nityanand's appearance. He laid the cornerstone and then he left. He poured all of his mercy here to the last limit and then left the planet. Any rascal that comes here gets that mercy. Before he left Bhubaneswar, Srila Prabhupada gave initiation to a number of local devotees. Digambar received Harinam and the name Dikpati Das. Srila Prabhupada left for Kolkata the very next evening train. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो आप समझ ही गए होंगे कि इस्कॉन भुवनेश्वर में कितनी कृपा है। और ऐसा बताया भी जाता है, मैंने कथा में भी सुना था कि इस्कॉन भुवनेश्वर जो ब्रह्मचारी जो प्रोड्यूस इन द सेंस कि जिसको जो भी ब्रह्मचारी बनते हैं वो ऐसे बहुत ही कम होते हैं कि जो कैसे कह सकते हैं कि जो लीव करे, या एक प्रकार से कुछ ऐसा हुआ हो कि जिसके वजह से वो लीव कर दे। ऐसा बहुत ही कम केस बना है। तो ऑब्वियसली इट इज ड्यू टू श्रील प्रभुपाद मर्सी, श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज तपस्या। तो बहुत बहुत ही सुंदर है ये। जब भी मतलब श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज को उनके डिसाइपल्स ऐसा बोले थे कि मतलब कुछ ऐसा इश्यू हुआ था। ऑब्वियसली देखिए, हमें ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, दैट इज अंडर मटेरियल रियम। मटेरियल रियम मतलब जो ये भौतिक संसार है उसी के अंदर है वो, भले वो मटेरियल या स्पिरिचुअल। ऑब्वियसली स्पिरिचुअल है तो इट मेक्स अ डिफरेंस, बट मटेरियल में तो ऑब्वियसली विवाद तो होते ही है। सो स्पिरिचुअल में भी विवाद होते हैं इंस्टीट्यूशन में, बट इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, ऐसा है। सो ऐसे ही कुछ विवाद हुआ था। हमें ऐसा नहीं है कि हम किसी के प्रति अपराध करते हैं ऐसा कुछ, बट ऐसा विवाद तो होता ही रहता है ऑब्वियसली, बिकॉज हर कोई अलग अलग जगह से आता है, हर एक जन का अलग अलग स्वभाव होता है। तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मतभेद हो ही जाता है। बट किसी के भी बीच स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में किसी के बीच मनभेद नहीं होता है, मतभेद तो ऑब्वियसली हो ही जाता है। तो ऐसा कुछ मतभेद हुआ था। इसके वजह से श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज डिसाइपल वर टेलिंग हिम दैट हम खुद का इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, लेट अस लीव इस्कॉन। सो श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज बिकेम वेरी मच ग्रेव, इट बिकेम वेरी मच कैसे कह सकते हैं एंग्री, कि आप ये कैसे कह सकते हैं। माय गुरु महाराज हैज ओपन दिस टेम्पल, इट इज हिज विश, सो आई कांट लिव इट एट मतलब एट एनी कॉस्ट, ऐसा। सो ही हैज poured ऑल हिज मर्सी है। सो उन्होंने जब ये बोला था ही हैज poured ऑल हिज मर्सी है, सो दिस वाज द रीजन आई प्लेस में ऑल माय मर्सी है, आई प्लेस में ऑल माय मर्सी है, आई प्लेस ऑल माय मर्सी है। सो बहुत सुंदर है ये ये सुन के एकदम ऐसा गूजबम्स आ जाता है। तो जी। Visiting Prabhupada
Prabhupada in Mayapur. In late 1976, an ISKCON devotee had been giving classes on the Bhagavatam in the town of Khurda near Bhubaneswar. Hare Krishna Mahapatra, a young man from a nearby village. Oh, Prabhuji scroll. सो एक मिनट आते हैं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो इसमें हम देख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉच विद श्रील प्रभुपाद और गोविंद दास इज ऑन द फार लेफ्ट, बॉटम श्रील प्रभुपाद गिविंग क्लास। सो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बैठे हैं और श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज बहुत पीछे बैठे हैं फार लेफ्ट। सो जब भी हमारे मतलब गुरु कथा करते हैं तो ऐसा एक प्रकार से एक रिस्पेक्ट के हिसाब से, या कुछ मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक रेवरेंस समझे तो कहते हैं रिवर्ड स्पिरिचुअल मास्टर। उसकी वजह से हमें एक प्रकार से ऐसा डर लगता है, जैसे हमारे पिताजी होते हैं तो हम ऐसे पिताजी के सामने सामने से नहीं जाते हैं, वो बुलाते हैं तो अलग बात है, बट ऐसे एकदम सामने से हम नहीं जाते हैं। मतलब ऐसे एक डर लगता है कि यस, ही इज माई फादर, ऑब्वियसली आई हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम, बट एक प्रकार से ऐसा होता है कि रिवर्ड, ही इज माई रिवर्ड फादर ऐसा। तो उसी प्रकार से श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज तब गौर गोविंद दास थे, तो उसका एक फोटो है। जी माता जी, यू कैन कंटिन्यू। जी प्रभुजी. My reverse spiritual master had attended some of these programs and had become interested. He inquired about the address of ISKCON and came to the property at Nayapalli, Bhubaneswar. Impressed by Gaur Govind Swami's preaching and demeanor, Hare Krishna decided to join the ashram. Out of affection to the young man, the devotees started calling him Vaishnav Das. Bhakti Vikas Dandi Swami, Hare Krishna Mahapatra Vaishnava Das. During the time that Srila Prabhupada was in Bhubaneswar, I had gone back to my village to visit. By the time I returned, Prabhupada had already left. I had so much anxiety to see him. Gaur Govind Swami said, "Don't worry, stay with me and you will get darshan of Prabhupada." At that time, there were no brahmacharis with Gaur Govind Swami. I was new to that place. Whatever Gaur Govind Swami told me, I would do. One day I asked him to please give me initiation. He said, "First you should learn about brahmachari life from me. It is important. Prabhupada will give you initiation." Prabhupada had told Gaur Govind Swami to train the Odia brahmacharis. हरे कृष्णा। सो इसमें भक्ति विकास दंडी स्वामी महाराज, जो कि पहले हरे कृष्ण महापात्र थे, जिनकी दीक्षा हुई थी वैष्णव प्रभु जी जो हुए, फिर प्रभुपाद के डिसाइपल है ये। तो ये प्रभु जी जो है, अभी मेरे ख्याल से नीचे लीला आएगी तो मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर नहीं आएगी तो मैं ही बता दूंगा। ये बहुत ही स्टार्टिंग से ये बहुत ही स्टार्टिंग से थे श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ। उनके जब स्टार्टिंग डेज थे तब से वो थे, एंड ही वॉज वेरी मच यंग एट दैट टाइम, एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल स्पिरिचुअल, क्या कह सकते हैं, कंसेप्ट या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट जो भी हम कह सकते हैं। तो उसमें सब में वो इंटरेस्ट है, एंड उनकी बहुत ही इच्छा थी श्री प्रभुपाद से उनका मिलन हो, बट कुछ कारणवश नहीं हो पाया। सो हम आगे पढ़ते हैं। कोई रीड करना चाहेगा? अमन प्रभु, अक्षित प्रभु भी कर सकते हैं आप प्रभु जी, यदि पॉसिबल हो तो आप भी कर सकते हैं। अक्षित प्रभु, अमन प्रभु, धनाक्षी माता जी ने किया, ब्यूटी माता जी, कोई भी कर सकता है। अगर पॉसिबल ना हो तो आप चैट में बता दीजिए, कोई बात नहीं, बट अगर पॉसिबल है तो प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा अमन प्रभु, बोलिए बोलिए, रीड करिए। I wanted to talk with Prabhupada and touch his lotus feet. Gaur Govind Maharaj said, "Don't worry, come with me. You will be able to talk with Prabhupada. He will give 15 minutes of time for Odia people." A little before Gaur Purnima, Gaur Govind Maharaj, Bhagavad Das, Nand Maharaj Das, Jita Pran Das, Pondrik Das, Jeev Dharma Das, and I all went to Balasore by bus with small deities of Gaur Nitai Gaur.
From there, we went to Ramona. When we arrived at the temple of Khirachor Gopinath, the pujari was not there. I was from a Brahmin family, so Gorgovind Maharaj read the mantra and I did puja. That night, we went by train to Kolkata and reached there the next morning. From there, we went to Mayapur. Prabhupada had just come from Mumbai to Mayapur. There were thousands of people there. Prabhupada was doing kirtan. After 2 days, Prabhupada called for us. We all entered Prabhupada's rooms together. Prabhupada was sitting with his sister. She pointed to me and said in Bengali, Ei Chilata Kothaya. Where is he from? Gorgovind Swami replied, He is from Odisha. She said, In the corner of the room there is a pot. Tell that Odisha Chela to daily bring a full pot of Ganga water for us. I had never seen the Ganga. Gorgovind Maharaj gave me directions how to get there. He also instructed me to bring a neem twig for him to brush his teeth with. So I went to the Ganga for water and that twig. Somehow I was not able to find a neem tree. I searched all day and finally found a tree about 3 or 4 kilometers away. It was evening by the time I returned with the items I was sent for. The evening aarti had already finished. An announcement had been made that some Odia devotee had disappeared and devotees should keep an eye out for him. Not knowing about that, I returned to the ashram and presented the neem twig to Gaur Govind Maharaj. When Gaur Govind Maharaj saw me, he became angry and said, Hey Vaishnava Das, you sent a neem twig with someone else. Where did you go? We were searching for you anxiously. I told him, No Maharaj, I didn't send a neem twig with anyone. Maharaj became angry and said, No, you sent it with someone. I did not know what to think. Who brought that neem twig? It wasn't me. Who knows? Perhaps Mahaprabhu himself gave a neem dust to Gaur Govind Maharaj. हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम तो इसमें आप समझ ही गए होंगे कि कितने मतलब शुद्ध भक्त है श्री श्रीमद् गौर गोस्वामी महाराज। एक ऐसा भी ऐसा मैंने सुना था उन्हीं के डिसाइपल के मुख से कि महाराज ने उनके पूरे मतलब जब भी वो स्नान किए हैं कभी भी उन्होंने साबुन जो हम बोलते हैं सोप उन्होंने कभी भी यूज ही नहीं किया। एंड देन टू नेचुरल फ्रेग्रेंस वुड कम आउट फ्रॉम हिज बॉडी। नेचुरल फ्रेग्रेंस मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ है ऐसा या कोई ऐसा एकदम फॉरेन का कुछ लाया हुआ ऐसा कुछ नहीं। सो दिस वाज द प्योरिटी ऑफ महाराज हम समझ सकते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर मतलब ये सब लीलाएं सुन के एकदम ऐसा लगता है कि हम इतने दुर्भागी है कि अ, हम बहुत लेट हमारा जन्म हुआ वी कुडंट सी द लिविंग चैतन्य ऐसा हो गया। तो एक मतलब बहुत बड़ा ऐसा रिग्रेट रह जाता है कि वी कुडंट यस फ्रेग्रेंस ऑफ सरेंडर ऑफ डिवोशन यस यस यस। एक ऐसा बहुत बड़ा रिग्रेट रह जाता है कि वी कुडंट हैव द दर्शन ऑफ श्री प्रभुपाद। ऑब्वियसली इट वाज wasn't possible बिकॉज हम तो born ही नहीं होते बट also we were so much unfortunate that we didn't get darshan of Shri Srimad Gaur Goswami Maharaj. So so what can we say? But yes, it is it is a gift of गोपाल जी पब्लिकेशन दैट दे हैव गिवन दिस बुक। बहुत सुंदर बुक है ये। आप सभी ले भी सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो www.gopalju.org के लिए वेबसाइट भी है वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं ये बुक को। बहुत ही सुंदर बुक है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप ऐसा है कि आप डूब ही जाओगे वो बुक में। ऐसा है इतना नेक्टर है ना बहुत आनंद आता है आप यदि पढ़ेंगे तो। सो यस 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 बराबर है यस। तो यस श्री श्रीमद गौर गोसाई महाराज का ऐसा ही है। मतलब वो ऐसा एक्चुअली व्हेन ही गेट्स एंग्री इट सीम्स लाइक ही इज वेरी मच स्ट्रिक्ट बट एक्चुअली ही इजंट स्ट्रिक्ट। ही इज वेरी मच लविंग बट व्हेन डज ही बिकम स्ट्रिक्ट
it becomes strict when someone is doing against the uh, uh, the mission of महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद. जब ऐसा कोई करता है कृत्य कि जो इस्कॉन को हानि पहुंचाए या जो शास्त्र के विरुद्ध है, तो तब फिर महाराज बिकम्स वेरी मच स्ट्रिक्ट. ऑब्वियसली ही शुड बिकम स्ट्रिक्ट. ऐसा है मतलब वो स्ट्रिक्ट उनको किसी को भी बनना ही पड़ेगा. जैसे यदि कोई छोटा बच्चा हो और माँ ऐसा बोले कि मैं उसके बस उससे उसको मैं कैसे मार सकती हूँ, कैसे मार सकती हूँ, बट वो झूठ कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो उसको टोकना तो पड़ेगा ही. उसको एक बार तो चांटा लगाना पड़ेगा तब वो सीधा हो पाएगा. नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वो उसका बढ़ता ही जाएगा. ऐसा है. यस. यस यस बोलिए. सो यस बोलिए. कीचोड़ गोपीनाथ टेम्पल. यस. ये एक्चुअली हो गया प्रभु जी. आप है ना अक्षित प्रभु, आप आपको मतलब अभी पता लगा. सो आप चैनल पे भी देख सकते हैं प्रभु जी. चैनल पे हमारे रिकॉर्डेड सेशंस है सभी डेज के. मतलब हमारा सेशन एवरी सैटरडे संडे होता है. सो सभी डेज के रिकॉर्डिंग जिसमें है, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं. तो हमने ये लीला अब कवर हो चुकी है. सो खीरचोर गोपीनाथ टेम्पल में जब डिवोटीज पर डिवोटीज की इच्छा थी कि खीरचोर गोपीनाथ टेम्पल में जो गार्लैंड है वो श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज को मतलब पहनाया जाए ऐसा कुछ. तो पुजारी जी ने कहा कि गोपीनाथ के पास तो सिर्फ एक ही गार्लैंड है, तो मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ कि उन्हें पहना दो. तो फिर गोपीनाथ के पास मतलब एक भी कुछ ऑफर करने के लिए भी मेरे पास अभी नहीं है. तो ऐसा हुआ कि वो जो गार्लैंड था वो अपने आप ही गिरता रहा. 2-3 बार पुजारी फिर से लगाया तो फिर से गिर गया, फिर से गिर गया. फिर पुजारी समझ गए कि ये श्रीचर गोपीनाथ हिमसेल्फ वांट्स दैट दैट दिस गार्लैंड मे बी इन द नेक ऑफ श्री श्रीमद गौर स्वामी. हरि बोल हरि बोल. तो हम आगे बढ़ते हैं. The next day, yes, the next day we again had darshan of Sri Prabhupada. I gave a pot of Ganga water to his sister, and she gave me a sweet. Every day I started bringing water to her, and every day she would give me a sweet. When I touched Sri Prabhupada's feet, his servant told me not to do that. Prabhupada spoke to us about the Bhubaneswar temple. He said, I will send an architect to construct a temple at Bhubaneswar. I saw that Prabhupada was very kind. He put his hand on my head and instructed me to obey Gaur Govind Swami Maharaj's instructions, do proper service, and always chant Hare Krishna Mahamant. After that, his sister called me and gave her blessings to me and said, you should continue to daily bring a pot of Ganga water for me. Then Prabhupada brought out some nice cloth and gave me some. But Gaur Govind Maharaj said, Prabhupada, don't give him so much cloth and good quality cloth. He should learn renunciation. Then Prabhupada gave less and cloth of poorer quality to me. Gaur Govind Maharaj and I went on parikrama in the Mayapur area, visiting Surbhi Kunj, Nrsinghapalli, Navadvip, etc. But every day we managed to give the water at proper time to Prabhupada's sister. Finally, it came time to return to Odisha. We were not able to get another darshan of Prabhupada, so Gaur Govind Maharaj wrote a letter to him, and we returned with Nitai Gaur. So, so इसमें हमें ये बात समझनी चाहिए कि why Shri Srimad Gaur Govind Swami Maharaj said that Shri Prabhupada don't give him so much. Give मतलब भक्ति विकास दंडी स्वामी महाराज जो श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ थे, इनके साथ भी बहुत सारे मतलब ये जो भक्ति विकास दंडी स्वामी महाराज है मतलब वैष्णव दास थे तब. तो इनकी इतना मतलब इनका तो इतना बहुत बड़ा सौभाग्य था. वो खुद एक वीडियो में बताते हैं कि यस यस, वो खुद एक वीडियो में बताते हैं कि मतलब मेरा जो मतलब वो ऐसे एकदम ऐसे रिग्रेट कर रहे थे. मतलब ऑब्वियसली इट वाज ह्यूमिलिटी, बट ही वाज सेइंग मतलब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि आई कुडंट टेक मच एसोसिएशन. मतलब मच एसोसिएशन इन द सेंस कि प्रॉपर एसोसिएशन में नहीं ले, एडवांटेज नहीं ले पाया एसोसिएशन का. सो ही वाज एक्चुअली रिग्रेटिंग इन दैट वीडियो. बट वो प्रभु जी मतलब वैष्णव दास प्रभु जी उस टाइम पे उनका क्या सौभाग्य रहा होगा कि ही कुड सी मैनी लीलास विद श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज. तो इसमें श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज बता रहे श्री प्रभुपाद को कि डोंट गिव हिम सो मच ऑफ क्लॉथ एंड गुड क्वालिटी क्लॉथ, ही शुड लर्न रिनाउंसिएशन. सो हमें ये समझना चाहिए इस स्टेटमेंट को. कभी कभार ऐसा लगता है कि मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि अच्छा मतलब अच्छा अच्छा क्वालिटी है, अच्छा
कंडीशन मिल रहा है, सो वाई शुड बी रिजेक्ट, मतलब ऐसा क्यों? हमें तो लेना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। ऐसा मतलब ऐसा तो नहीं ना कि श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज जेलस है कि उनके पास अच्छा क्लॉथ नहीं है और वैष्णव दास को दे रहा है। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द स्टेट, ऐसा तो है ही नहीं ऑब्वियसली। तो तो why Mara said like that? It was actually वैष्णव दास जो थे उनको ब्रह्मचारी बनना था, और ब्रह्मचारी मीन्स that you have to surrender everything to Krishna, and you yourself should also surrender to Krishna. Obviously in गृहस्थ आश्रम also, but गृहस्थ आश्रम में थोड़ा मॉडिफाइड होता है कि हमें हमारी फैमिली जो होती है उन्हें उनका पालन पोषण करने के हमें थोड़ी लक्ष्मी चाहिए। सो बाकी नहीं तो ब्रह्मचारी जो होता है उनको 100% सब कुछ देना होता है, ऐसा। सो उसमें कैसा होता है कि ब्रह्मचारी जीवन जो होता है उसमें तपस्या भर भर के होती है। तपस्या तो होनी ही चाहिए एक्चुअली, गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, उसमें तपस्या तो होनी ही चाहिए। सो तो जस्ट टू ट्रेन हिम कि वो वैष्णव दास, एक्चुअली इट वाज मर्सी ऑन वैष्णव दास कि उन्हें अगर अच्छा क्लॉथ मिल जाता, अभी जैसे आपको अगर कुछ अच्छा मिल जाता है ना तो आपको लोअर क्वालिटी का अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसा देखा जाता है जनरली। तो हम भी जब भी देखते हैं हम प्रयास करते हैं कि हम बेस्ट क्वालिटी ही ले। तो मतलब फिर ऐसा हो जाता है कि यदि हमें कोई लोअर क्वालिटी मिल रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि क्यों हम लें, ऐसा इसका कुछ जरूरत ही नहीं है। ये हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है। तो जस्ट टू ट्रेन हिम, श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज से। एंड वन साइड ऑल्सो सेड दैट श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, मतलब मैंने ऐसे बोला ना कि उनको ईर्ष्या होगी क्या, बट ऑब्वियसली नॉट। सो इसका एग्जाम्पल भी है कि श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के साथ एक डिवोटी थे जो सेवा करते थे वहां पे। एंड वो जो डिवोटी थे वो भी इस्कॉन से ही किसी महाराज से एस्पायरिंग थे। एंड ही वॉज वेरी मच सिंसियरली सर्विंग इन भुवनेश्वर टेम्पल एंड वेरी मच क्लोज टू महाराज। सो मेनी डेज तक, मतलब काफी टाइम तक वो थे। एंड वन डे ही सेड टू महाराज दैट महाराज, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, आप क्रोधित तो नहीं होंगे ना? तो महाराज मतलब आस्ट कि क्यों, क्या हुआ ऐसा, मतलब व्हाट हैपेंड ऐसा? So he said that I am actually aspiring from this Maharaj, and now I will leave the temple and I will go to that temple. Mostly I think so मायापुर था या वृंदावन था, मुझे याद नहीं आ रहा, वृंदावन या मायापुर कहीं पर था। सो ऐसा ऐसा मतलब ऐसा नहीं था कि श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज बिकेम एंग्री दैट यू स्टेड विथ मी फॉर सो मेनी डेज, व्हाई कांट यू, व्हाई आरंट यू टेकिंग इनिशिएशन फ्रॉम मी, ऐसा कभी भी महाराज ने नहीं बोला। और दूसरा ये भी था कि महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि निकलो, नहीं चाहिए तुम, ऐसा नहीं। सो व्हाट डिड महाराज टू, एक्चुअली इट वाज वेरी मच एस्टोनिशिंग। महाराज ने उनको बुलाया भागवत कथा के बाद, और फिर महाराज महाराज ने, उन्होंने जो गारलैंड पहना था, उन्होंने महाराज ने जो गारलैंड पहना था उनको पहनाया। एंड महाराज सेड टू हिम दैट थैंक यू फॉर सर्विंग एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू and good wishes, and may your bhajan be fruitful, and you may go take initiation from him. So हमें समझ सकते हैं कि उनके अंदर ऐसी कुछ 1% भी भावना नहीं थी कि मैं क्यों, मतलब ये क्यों दूसरे किसी महाराज के पास जा रहा है, ये डिवोटी मेरे से दीक्षा क्यों नहीं ले रहा है और मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है, पहले दीक्षा ले ले फिर से यहाँ पे आ जाए। तो देयर वाज नथिंग लाइक दैट, ऐसा। तो ये बहुत मतलब सुंदर एक प्रकार से लर्निंग है इसमें से। तो क्या हम ये और एक ले सकते हैं टॉपिक, छोटा सा ही है, यदि आप सभी की अनुमति हो तो, बुलक कार्ट संकीर्तन। हरे कृष्णा। ओके। अच्छा। यस यस एग्जैक्टली, यस, राइट, यस सत्यम प्रभु, यस। ओके, हरे, यस। सो कोई रीड करना चाहेगा, मैं ही कंटिन्यू करूँ? कोई भी रीड करना चाहे तो बता सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता, यस यस यस, रीड कर। यहीं से लेना है, लोकनाथ स्वामी महाराज। यस यस, बुलक कार्ट संकीर्तन, यस एग्जैक्ट। Bullock Cart Sankirtan, Loknath Swami. We had gone from Vrindavan to Mayapur with a Padyatra. Srila Prabhupada had told us that we should go to Jagannath Puri. Our bullocks were from North India.
from Haryana. As the cart was ongoing, as the cart was going through the Odisha, one of the bulls got sick and died. Somehow the devotees got a buffalo to replace him, and they managed to reach Bhubaneswar. Gaur Govind Maharaj expressed his desire that they leave the cart, bullocks, and deities, and he would carry on with the program. I wrote a letter to Srila Prabhupada and asked him about it. On 30th, on the 30th of July 1977, Prabhupada wrote back. I'm also very pleased that Gaur Govind Maharaj will be joining the Bullock Cart Sankirtan. He is a very good preacher and an ideal Vaishnava. So his addition to the party will increase the activities. So we left the whole setup. Our Gaur Nitai deity stayed. Our Gaur Nitai deity stayed there and are there to this day. These deities were originally from Turiya Das. He was the head pujari of Vrindavan. These were his personal deities. He let us have those deities for our program. The deities traveled to Bhubaneswar and they stayed there. Gaur Govind Maharaj was personally taking care of them with the help of one other devotee. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो इसके पीछे बहुत सुंदर लीला है कि आ, बहुत मतलब जब ये ऐसा हुआ था घटना, ये बहुत अच्छी घटना नहीं हुई ऑब्वियसली। सो जब ये घटना हुई थी तब गौर निताई डीटीज भुवनेश्वर लाए गए थे और श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज वर पर्सनली सर्विंग देम। एंड ऐसा हो गया कि व्हेन महाराज आस्ट कि अब मुझे मतलब अब बुलक कार्ट का हो गया सब कुछ और अब आप प्लीज रिटर्न करिए तो हम फिर से जा सकते हैं संकीर्तन के लिए। तो श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज दैट सेड दैट दे आर नॉट रेडी टू कम। सो श्री लोकनाथ स्वामी महाराज सेड कि ये मतलब आप ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो गया, रेडी नॉट दे आर नॉट रेडी टू कम मतलब क्या, मतलब आप उठा नहीं पा रहे ऐसा कुछ है। तो महाराज सेड दैट नो आई एम नॉट एबल टू कम। ऐसा ये इसके ऊपर एक वीडियो भी है, मैं ढूंढ के शेयर करूंगा ग्रुप पे। श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज इज पर्सनली नरेटिंग दिस लीला। तो फिर महाराज मतलब ऑब्वियसली अभी ऐसा अगर हमें भी कोई बोलेगा कि हमारे कोई पर्सनल डीटी हो और वो दूसरे किसी के घर पे ही रह जाए तो हमें ऐसा लगेगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर महाराज बोले, महाराज खुद गए गौर निताई के पास और वो लेने मतलब उठाने लगे। सो इट बिकेम वेरी मच हैवी दैट ही कुडंट टेक, इतने हैवी हो गए वो। एंड व्हेन गौर गोविंद महाराज यूज टू टेक तो वो हल्के हो जाते थे। सो महाराज समझ गए श्री लोकनाथ स्वामी महाराज दैट श्री श्री गौरनीताय want to stay with Sri Srimad Gauravan Maharaj. So finally he left the place and he he had to invite new Gauranitai deities and do the installation. So हम ये समझ सकते हैं कि गौर गोविंद महाराज इतने इतने प्रेम से सेवा कर रहे थे कि वो वहीं पे रह गए, मतलब सिर्फ थोड़े ही दिन में ऐसा। सो सो इतने मतलब क्या ही गए, मतलब हम इतने दुर्भागी है कि हम महाराज के दर्शन नहीं कर पाए। बट कोई बात नहीं, हम उनकी लीलाएं सुन रहे हैं तो वो महाराज से अभिन्न नहीं है। महाराज ही खुद ही है वो, एक्चुअली महाराज की लीलाएं मतलब। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो या मतलब ऐसा कभी होता है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट पढ़ के हमें डाउट आ जाता है कि ये कैसा कह सकते, ये कैसे कह सकते हैं महाराज। सो ऐसा कुछ हो तो आप प्लीज नरेट करिए। हमें मतलब ऐसा नहीं है कि हम मन में ही रखें, आप बिंदास बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है। तो हम उसको प्रयास करेंगे कि हम उसको सॉल्व कर पाए। तो प्लीज आप बता सकते हैं, और कोई फीडबैक है ऐसा कुछ हो तो वो आप बता सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो आप बता सकते हैं।